नमस्कारम प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर थर्ड शुरू कर रहे हैं, राइट? So today we're going to start third lecture for the third chapter itself from the CBSE class 10, linear pair equations in two variables. अभी तक हमने बेसिकली लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल समझा है क्या होता है। जैसे हम जनरल इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस होंगी हमारी, जिसे हम y इज इक्वल्स टू एक्स या एम एक्स प्लस सी से, या एक तरीके से a1 y1 प्लस b1 x1 इज इक्वल्स टू c1, एंड सिमिलरली a2 y2 प्लस b2 x2 इज इक्वल्स टू c2 के रिस्पेक्ट में हमने इसको देखा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस देखी, क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि जब बेसिकली a1/a2 हमारा बराबर नहीं होगा b1/b2 से, तब क्या होगा। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 से, तब क्या होगा। एंड लास्ट a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और फिर वो बराबर होगा c1/c2। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने जब बात करी तो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी सेड से एल्जेब्रिक मेथड, राइट? उससे पहले वाले में हमने ग्राफिकल मेथड से बेसिकली हमने देखा था कि हम सॉल्व कैसे करें ग्राफिकल मेथड। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि चलो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए देखते हैं। एल्जेब्रिक मेथड, राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग, so we have initially in the first lecture of this chapter we have understood that okay, this is the linear pair into pair equation in two variable means. Then we said okay, these are the some conditions which is generally followed for two variable equations. Then we try to find out to solve these equations we use graphical method. In the last lecture we basically talked about algebraic method. एल्जेब्रिक मेथड में हमने कौन कौन से देखे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, तो इन एल्जेब्रिक मेथड वी सॉ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड देन दूसरा हमने एलिमिनेशन मेथड देखा, देन वी टॉक्ड अबाउट एलिमिनेशन मेथड बेसिकली। नाउ इन दिस केस we talked about a lot of questions of substitution and elimination, right? इसके अलावा अब मैंने तुम्हें दो क्वेश्चंस, वी आल्सो गिवन बेसिकली टू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इफ आई रिमेंबर करेक्टली. There were two questions for practicing, right? I'll just do them right now only, because earlier I've given it as a homework. Okay. So first question was 4x plus 6 by y is equals to 15 है, 6x by 1 minus 8 by y is equals to 14. मैंने already last class में what we have told is the general equation we need to convert every equation into a general form first of all. So what we are saying, without उसके भी इसमें काम बन जाएगा, but it would be better basically simplify रखने के लिए. So what I'm doing in the first question, I'm just taking 1 by small y as equals to capital Y, and then 4x plus 6y, 6 capital Y let's say, is equals to 15, and then 6x minus 8y is equals to 14, right? Now किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस y में है, तो विल बेसिकली टेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y, और एलिमिनेशन मेथड से हम बेसिकली कर लेते हैं, मेथड एलिमिनेशन से ही बोला हुआ इन्होंने भी, गुड इनफ. So what we are saying, 8 और 6 I think 24 होता है दोनों का, तो दोनों का 24, तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 3 से, राइट? What would happen, 4 4s are 16x, 4 6s are 24y, 15 4s are 60, 3 6s are 18x, 3 8s are 24y, 14 3s are 42. ये गया. What is this equals to? I think 34 if I'm not wrong. 34, yes. And this is equals to 102. Directly आपको दिख रहा होगा 102 divided by 34. 2 से कर लेते हैं, तो 2 this would be 51. I'm sorry, 17. 17 से 3 से करेंगे डायरेक्टली, तो 3 आ जाएगा, तो x is equals to 3. अब इस x is equals to 3 को I will put it in the equation. Maybe the first equation we can say, if I take this as first equation, let's say. So if I put x is equals to 3 over there, 4 into 3 multiplied by 6 plus 6, so, yeah, plus 6y is equals to 15. Hence this will be 12 plus 6y is equals to 15. 6y is equals to 3, y equals to 1 by 2, but y was equals to 1 by small y, hence small y is equals to
our answer. Now, so answer of x and y comes out to be 3 and 2. So we are saying x is 3, y is 2. But they have given what? We need to find out the value of p basically for calculating this. तो क्या करें? अब x 3 है, y क्या है 2. Just put the values over there. So what we are saying, y is 2 is equals to p multiplied by x. X how much x is there? 3 minus 2 over there 4 is equals to 3p. Hence p is equals to 4 by 2. Hope it is making sense, right? इसको थोड़ा सा इधर ही रख लेते हैं ताकि सारी चीजें एक तरफ रहें बस. या ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन. एक जगह जस्ट रिपीट दैट इन हिंदी. तो पहले हमने क्या किया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14. देन हमने देखा कि हम किसको एलिमिनेट करें, तो y का जो साइन है वो अपोजिट दिखा हमें. तो हमने कहा y को एलिमिनेट करते हैं. एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करना चाहते हैं, हम दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, तब एलिमिनेट होगा. दोनों कोएफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे, तो दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे. 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24. तो 24 लाने के लिए 6 के अंदर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, राइट. एंड हेंस 4 6 मल्टीप्लाई किया सबको, फिर सिंपल सिंपल ऐड कर दिया क्योंकि अपोजिट साइन ही थे, इसीलिए ये लिया भी था. और फिर बस x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमने इक्वेशन में डाली, y की वैल्यू निकल गई. दोनों की वैल्यू निकाल के मुझे इस इक्वेशन में डाल के p की वैल्यू निकालनी थी, वो भी निकाल ली, राइट. ओके, नेक्स्ट वन. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन एक्चुअली ऐसे ही सिमिलर हम कर चुके हैं. अभी देखने में अलग लग रहा है, क्या है, ab 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv, राइट. थोड़ा सा अलग दिखा, लेकिन अगर मैं इस uv को डिवाइड कर लूं, राइट, इफ आई टेक इट इन डिवीजन, व्हाट वुड हैपन, I can write the same equation as 8v divided by uv minus 3u divided by uv. और एक स्टेप में थोड़ा सा शायद खा गया हूँ, तो I have not taken one step, so I'll take that again. 8v minus 3u divided by uv basically, right, which is equals to 5. Now I can now separate them, 8v upon vu minus 3u upon, अब मैंने थोड़ा अलग अलग कर लिया दोनों को, which is equals to 5. Now see, vv will going to cut, v से v कट गया, u से u कट गया, right. So what happened is 8u minus 3 by v is equals to 5, right. Similarly मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ, तो v है तो v के नीचे सीधा u लिख दो, तो 6 upon u minus 5 upon v is equals to minus 2, right. Now again same analogy, क्योंकि मुझे तो बेसिक इक्वेशंस में चाहिए. So what we can write, 1 upon u as let's say x and 1 upon v as y. Hello, by that logic 1 upon u को x माना और 1 upon v को y मान लिया. So what would happen, 8x minus 3y किसके बराबर हो गया, 5 के. Similarly 6x minus 5y किसके बराबर हो गया, माइनस. अरे रे रे रे, अब हम क्या करें, अरे दोनों के साइन सेम है, अब तो किसी को भी ले सकते हैं, x को भी या y को भी. इसमें ध्यान से देखो, अच्छा ये तो 6 और 8 दोबारा आ गया, फिर 24 दोबारा है, ये तो सेम ही हो गया, तो इसी को ले लेते हैं, लगते हैं, चलो आसान रहेगा हमारे लिए. तो क्या किया हमने, इसको अगेन 8 और 6 का एलसीएम 24, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से, पूरी इक्वेशन को 3 को 3 8 जा 24x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 15, 4 6 जा 24x माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 8. अब सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, साइन सबके अपोजिट कर दो जो नीचे वाले हैं. प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, 24 से 24 गया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 29y and this equals to I think 23, right. 23, good enough. 3 3s are 9, 3 4s are 20, but I think this should have been 11, I'm sorry, this should have been 11, this should have been 11, right. Yeah, plus 11y, 4 5s are 20, 3 3s are 9, opposite आया, ठीक है, 15, ठीक है. तो y हमारे पास आ गया 23/11. आंसर चेक करें एक बार, मुझे लग रहा है नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं था आंसर, वो इधर है. मुझे थोड़ा सा आंसर में डाउट हो रहा है, तो लेट्स चेक इट वंस. ना, ठीक है, गुड इनफ. सो व्हाट वी आर सेइंग, कहाँ गया, या ओवर हियर, सेकंड क्वेश्चन, गुड इनफ. सो y is equals to so small y becomes equals to 23/11. Second one, now what we are saying, y आ गया हमारे पास. अब x की वैल्यू देखें, x क्या है,
वाई की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन में, राइट। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, या 6x माइनस 5, वाई कितना 23/11 इज इक्वल्स टू -2 माइनस प्लस हो जाएगा 105/11 -2 22, 105 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 11, 83 आई थिंक डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू 6x, तो x इज इक्वल्स टू 83/11/6, 3 2 जा 3 3 ना, इसे नहीं जा रहा, किसी और से 105, 105 नहीं होगा, आई थिंक 115 होगा, आई थिंक है ना, 5 या 115 है, देखो क्या है। ये 115 हुआ तो ये 93 हो गया, राइट। ये 93 हुआ, 93/11, अब ये 93 हुआ तो अब चला जाएगा, देखो 93/11 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 2 जा 3 31, कितना आ गया 31/22। नाउ यू कितना था, यू था 1/x, या बेसिकली 1/x यू था, 1/u x था, रिवर्स कर दिया मैंने, और फिर इसका x कितना आया मेरा 31/22, तो u ये आ गया। सिमिलरली v क्या हो जाएगा 1/y, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/6। एक पार्ट तो ये आ गया। सेकंड एक आंसर और हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये इनिशियल इस फॉर्म में दे रखा है, राइट। 1/u और इस फॉर्म में तो हमने बनाया है, तो अगर मैं u और v को जीरो लिख लेता हूँ यहाँ पर, v को जीरो लिखा, u को भी जीरो लिखा, u को जीरो लिखा और v को भी जीरो लिखा, तो ये पूरा भी 0 0 हो जाएगा सब, तो ये भी आंसर होगा। तो बेसिकली इसके दो सॉल्यूशंस हो गए, एक u0 v0, और दूसरा क्योंकि ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं था, अगर ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा होता देन वी वुड नॉट बी एबल टू, मैं फिर नहीं रख लिख पाता, राइट। what I'm saying is that I have converted from this form basically to this form, right, and then from this form. So basically there's a three conversions over here. What I'm trying to say over here is that because it is initially it is in this form, so we can even put v and u as 0, and basically we'll also get 5u v also as 0. By that logic, what we are saying, u and v is also u and v equal to 0, also giving me a solution, right. Secondly, what we are saying, so after converting them also, this is also my solution. So 22/31, which is u is equals to 20 20 20 20 20 2/31, 22 by what happened here, 22/31, and b comes out to be equal to 11/22. These are our two solutions. Okay, good enough. Now we'll move on to today's question, which is from the word problem. Now basic word problems only, these questions will be very basic. We'll just do it in a quick session, right? Let's see what we are saying. 4 chairs and 3 tables are there, right? Let's take chairs, already putting it x, table says y, chair x, table y. What is x and what is y? Basically cost of one chair is x, cost of one chair is y, right? So what we'll write is cost of one chair. Okay, this is how you need to do it in your school also. Cost of one chair is x, cost of one table is y. Now what you'll write according to question, right? What question is saying 4 chairs and 3 tables. So 4 chairs, one chair is of course cost x, 4 chair will cost us 4x, one chair cost us 3y, 3 chairs cost us, sorry, one chair cost us y, 3 chairs cost us 3y, और कितने रुपए 2100. अगेन आई एम रेटिंग, क्या कह रहे हैं कि भाई एक चेयर की जो कॉस्ट है वो x रुपए है, एक टेबल की जो कॉस्ट है वो y है। जब एक चेयर x की है, कितनी चेयर ली यहाँ पे 4 चेयर, तो 4x, 3 टेबल हैं तो 3 टेबल, एक टेबल y, तो 3 टेबल 3y, 4x प्लस 3y किसके बराबर 2100 के बराबर, राइट। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या होगा 5x, 5 चेयर प्लस 2y, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, देखो कितना था, बस यही है, बन गई इक्वेशन। अब हमें चेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो बेसिकली सीधा सीधा हम क्या कहें कि एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है, एक टेबल की कॉस्ट निकालनी है। पहले एक बार देख लेते हैं, क्या ये 4/5 और ये 3/2 है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। मैं थोड़ा सा पीछे वाला लिंक कर रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, जनरली सही होगा, लेकिन फिर भी हमने एक बार लिंक कर लिया, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दिस स्टेप, बट just for confirmation we are doing it, and it would basically makes our work a little easier.
not easier, basically it will relate our past classes, so that we should be a little aware of that, and a small revisions actually happens automatically. Okay, now what we are saying, we can complete this by elimination method. We can, what we can take, both are positive only, so we can take anything. Let's say take 4 and 5 itself. We are eliminating x. So for eliminating x, we have to take 4 and 5. LCM of 4 and 5 is basically 4 ones are 4, 5 ones are 5. So it will be 20. So getting this as 20, I have to multiply it by 5. So I'll just take both the equations simultaneously and then multiply that particular equation with, first the upper equation with 5, the lower equation with 4. Why I'm multiplying the whole? Because अगर यहाँ पे ही multiply करूंगा, if I multiply only over here, तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो वही रहा, इक्वेशन चेंज हो गई, तो मुझे पूरे पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अगर मुझे काटना हो तो सेम, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कुछ वैसा लॉजिक है। तो मैंने इसको ऐसे मान लो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 से यहाँ डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया वहां जाके मल्टीप्लाई में ले लिया, दैट्स द बेसिक आइडिया। तो पूरे को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, 5 को इधर से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 20x प्लस 15y किसके बराबर 10500 हो। 4 5 जा 20, 20x प्लस 4 2 जा 8, 8y इज इक्वल्स टू 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी ऑन 2, 28 into 30, 0, carry on 3, it would be 11. Oh my god, it comes out to be 11. I think I have done something wrong. 4 0 is 0, 4 5 is 20, 2 carry on 2, 28, 28 into 30, 0 carry on 3, 4 1 is 4 and 3, 7. Right? Good enough. Now if I subtract the two equations, let's take this one as third and take this as fourth. Okay, what we are doing, subtracting both the equations. So you can also write subtracting over here, subtracting fourth from third equation, or subtracting equation fourth from equation third. Now what we are saying, if this is subtraction over here, 20 20 would going to get, this would basically be 7y, this would be 35. Okay, okay, then 7 5 जा 35 होता है, तो y डायरेक्टली कितना आ गया 500। तो हमारे पास किसका y, टेबल की कॉस्ट आ गई, राइट। y नाउ ऊपर इक्वेशन में डाल दें 4x प्लस 3y, y कितना 500, किसके बराबर 2100, 500 1500 फुट, राइट। 1500 किसके बराबर 2100, हेंस 4x किसके बराबर 600, x किसके बराबर 600 बाय 4, 4 1 जा 450, राइट। 150 रुपए की चेयर हो गई और 500 रुपए की टेबल हो गई, राइट है। बेसिक आइडिया आई थिंक शुड बी क्लियर ओनली over here. Okay, finally you can write cost of one chair, cost of one table, chair rupees 150, table rupees 500, right? Okay, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन। ओके, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे ही कुछ बड़े बड़े नंबर्स एक बार लिए थे, इसमें 113 और ऐसे कुछ आया हुआ था, राइट। सेम लॉजिक देखो, पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन, cost of one pencil, cost of one pen x, cost of one pencil y, right? Direct equation according to question, 37x plus 53y किसके बराबर, अरे 320, अरे 53x, अरे सेम नंबर आया है तो ध्यान से देखें, प्लस 37y, ओहो हो, another same number 400. Shall we add both of them and subtract both of them twice? Once basically, first add it and then subtract it. See, when we add it, I think it would be 90 if I'm not wrong. Yeah, 90x, 90y, 720. Good enough. Subtracting 16, I think, minus 16x plus 16y is equals to minus 80. Hello. तो अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो आई कैन राइट इट एंड माइनस एक्स को हम 16 डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओवर हियर व्हाट वी कैन राइट, x प्लस वाई, 90 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, 9 आई थिंक, 9 8 जा 72, 8 यार 8,
Okay, मुझे I need to learn the formula also. So x plus y is equals to 8, x plus minus y is equals to, so I'll just write it again, x plus y is equals to 8, x minus y is equals to 5. Directly we can just take it, y cancel, 2x is equals to 13 if I'm not wrong, x is equals to 6.5. And if I put the 6.5 over there, is it? Uh, just a second, I just charged the, give me 10 seconds, please. Uh, yeah. So what we are saying, yeah. So y will be x plus y is equals to 8. Hence y is equals to 8 minus x. What is x? 6.5. So 8 minus 6.5, which is equals to 1.5. So hence, one is of 1.5 cost, and the other is of 6.5. That's it. That's the answer. Okay, good enough. सभी को समझ में आया है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम कल क्लास में किया था, yesterday जो बेसिकली लास्ट क्लास हमने करी है उसमें. See, hope everything is clear up till here, right? Okay. Now, okay, NCERT exercise 3. What they are saying? Solve the pair of linear equation by elimination method and the substitution method. Solve the following pair by elimination method and substitution. So basically, I don't think इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है. Same questions हम कर चुके हैं. Over here, this one also same logic. बस इसमें इसको उस फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे 2y यहाँ आ जाएगा बस. बाकी सब देखिए सेम है. मैं एक बार थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ. 3x minus 5y इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने 4. एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? ये इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? 9x minus 2y is equals to 7. If we see the LCM, see this is 9, this is 3. So I can just multiply 3 in this. And what would happen? Just directly write it over here. So this would be 9, 15. So 9x minus 15y, 12 minus cut plus minus 13y minus, so plus 5. So y comes out to be 5 by 30. Yes, please. Any doubt? To anyone, hope everything would be clear over here. 15, 13, yeah, nothing can be done to simplify this. Good enough. I think it is good enough. 12, 7, 5, yeah, y is this. And if I put the y value in the equation, you will get basically the value of x, okay? All easy peasy only. Don't think it is, anything is there. Okay, we'll just try this one. This is another type, but yeah, you can try it. If we add 1 to the numerator and subtract 1 to the denominator, okay. Whenever such type of denominator and numerator type of questions comes out, just first say that let the fraction be x. Let fraction be x upon y. So first we have considered, okay, the fraction is x upon y. Now try to do basically all kind of things, right? So what we are saying, if add 1 to the numerator. So if I add 1 to the numerator, it will be x plus 1. Subtract 1 from the denominator, तो बेसिकली एक माइनस कर दो भाई. सिंपल सा लॉजिक है. अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम तो सीधा सीधा. अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. जो हमारा पूरा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? रिड्यूसेस टू 1 बाय 1 नहीं, 1 आ गया, इसका मतलब ये पूरा 1 के बराबर हो गया. हेलो, इट बिकम्स 1 by 2. वो 1 by 2 के बराबर हो जाएगा कब? इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब एक्स में कुछ मत करो, बस वाई के अंदर 1 ऐड कर लो और ये 1 by 2 हो जाएगा. होप इज इट मेकिंग सेंस? अब बस करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सिंप्लीफाई करना है. क्या किया हमने? एक को x plus 1 इज इक्वल्स टू उधर ले गए y minus 1. दोनों को एक तरफ ले गए, x minus y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 1 minus 2 हो गया, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 12. यहाँ पे क्या किया? सॉरी, इक्वल टू आएगा साइन में. यहाँ पे हमने क्या किया कि 2x किसके बराबर हो गया? y plus 1 के. एंड 2x minus y किसके बराबर हो गया? बेसिकली प्लस 1. तो हेंस हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया. अब दोनों इक्वेशंस को थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं. तो x माइनस वाई किसके बराबर? -2 के. 2x माइनस वाई किसके बराबर? 1 के. क्लैरिटी है, राइट? ओके.
अच्छा, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हें खुद करने को दूं, तो एक बार खुद ट्राई, मेरी क्वेश्चन जब भी शुरू होता है उससे पहले एक बार खुद ट्राई कर लिया करो। और जहां से तुम्हें लगता है कि अच्छा इक्वेशन तक हमने कर लिया, इक्वेशन तक चलो देख लेते हैं, इक्वेशन नहीं आती बनानी तो हमने इक्वेशन बनानी सीख ली, इक्वेशन बनाने के बाद खुद करना शुरू कर दो, राइट। लेकिन शुरू करो, राइट, अपने आप एक बार ट्राई करना शुरू करो। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग, इफ आई सबट्रैक्टेड, so subtracting, let's say equation third and fourth, equation fourth from the third equation, when I subtract it, minus plus minus, so this basically becomes minus 6, right? This would going to cut and this would basically become minus 3, and hence x becomes equals to 3. The moment x becomes equals to 3, so we can write the values. So 2 multiplied by 3 minus y is equals to 1. Y को उधर ले जाओ, 6 minus 1 is equals to y, which y is equals to 5. तो hence हम क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5. That's it. आंसर। और चेक भी करना हो तो डायरेक्टली तुम चेक भी कर सकते हो। कैसे? उसने क्या कहा था, x में 1 प्लस कर दो, x में 1 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, y में एक माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, या 5 में एक ऐड कर दो 6 हो जाएगा, 3/6 1/2 होता है। तो बोथ द इक्वेशंस आर गेटिंग वैलिड, नो वरीज, आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, यू कैन चेक इट ओवर हियर ओनली। अब एज वाले में, एज के क्वेश्चंस कैसे करें सर? वैसे इन सबके अलग अलग क्वेश्चंस मैंने बनाए हो तो अलग अलग हम करेंगे, बट स्टिल अभी के अभी में थोड़ा सा, अभी एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम ये देख लेते हैं। तो 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज 3 years old एज सोनू। ओके, कभी भी ऐसा कुछ हो 5 years ago, पहले हम प्रेजेंट एज के लिए लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज के लिए बोलो भैया पहले, तो हमने कहा सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। तो प्रेजेंट एज किसकी? पहले नूरी की, नूरी है तो नूरी को एक्स ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा उसने कौन रिलेट किया, सोनू, चलो भाई सोनू को भी ले लेते हैं, सोनू को वाई ले लेते हैं। अब कह रहे हैं 5 साल पहले, अब 5 साल नूरी, 5 साल पहले सोनू भी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 years अगो, यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जा रहे हैं। 5 years अगो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x-5, और सोनू की क्या हो जाएगी, y-5। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो क्या कह रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी 3 गुना ज्यादा बड़ी थी किससे, सोनू से। दिस मीन्स नूरी की एज बड़ी है, पहले तो ये समझ में आया। कितनी बड़ी है, 3 गुना, तो 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 गुना टाइम्स है 3। तो 3 गुना किससे मल्टीप्लाई करें, सन की एज जो भी सोनू है, सोनू की एज से। अब सोनू की एज कितनी, y-5, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, ये 15 को उधर ले जाते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 15-5 इज इक्वल्स टू 3y-x, एंड हेंस 3y-x इज इक्वल्स टू 10। क्या बातें समझ में आ रही हैं, राइट? तो 3y-x जो होगा वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, 10 के बराबर। दैट्स द बेसिक आइडिया वी आर ट्राइंग टू गिव इट। अब क्या हम क्या कह रहे हैं, तो 3y-x किसके बराबर, 10 के बराबर। अगेन आफ्टर, ये क्या, आफ्टर क्या होगा, 10 years लेटर। अब 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद 10 years आफ्टर, 10 years लेटर, भाई नूरी जो है उसकी एज क्या हो जाएगी, x+10, और जो सोनू है उसकी एज क्या हो जाएगी, y+10। अब क्या कहा उसने, उन्होंने कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी जो होगी ट्वाइस हो जाएगी, तो बेसिकली कुछ नहीं, x+10 किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y+10। तो हेंस x+10 किसके बराबर हो गया, 2y+20 के, एंड हेंस x-2y हम लिख सकते हैं क्या, 10, राइट। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं वैल्यूज को, तो -2y+x किसके बराबर हो गया, 10। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, दोनों को सॉल्व करने हैं हमें। सिंपल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। 3y-x किसके बराबर हो गया, 10 के, -2y+x राइट, +x इज इक्वल टू 10 के, सिंपली ऐड कर दो, ये y हो गया, ये 20 आ गया। डायरेक्ट y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 20 आते ही इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन में y की वैल्यू 20, तो -20, सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से ले आए। सो -2 इंटू y इज बेसिकली 20, प्लस x कितना, x तो निकालना है यार, क्या कर रहे हो सर। ओके, ये कितना हो गया, -40 प्लस x इज इक्वल्स टू 10, और x किसके बराबर आ गया, 50।
लड़का बड़ा हो गया भाई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता। एक मिनट रुके जरा, हम देखते हैं। ओके, ओके, सॉरी, मुझे ये लगा था कि एक्स हमने सोनू को मान रखा है, बस एक्स तो नूरी है तो 50 ठीक है, राइट। फिर 50 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 50 आ गया, तो नूरी की एज हमारी 50 आ गई और सोनू की कितनी आ गई, 20, एंड वी आर गुड इनफ। क्योंकि 50 में से 5 साल पहले ये 45 हो जाएगा, 5 साल पहले ये 15 हो जाएगा, 3 टाइम्स होता है, और 10 साल बाद ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 2 टाइम्स होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, नो वरीज विद दैट। तो जो नूरी की एज है करंटली वो है 50, और सोनू की जो एज है बेसिकली वो है 20, राइट। गुड एनफ, ओके। नेक्स्ट वन, और हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आया द सम ऑफ 2 डिजिट्स। ये मैं एक साथ ही कराऊंगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा और टाइम मांगता है क्वेश्चन, थोड़े से और प्रैक्टिस मांगेगा। अब ये एक एक क्वेश्चन में शायद ये थोड़ी चीजें कम समझ में आए, इसको बाद में हम दोबारा लेंगे, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग अगेन, एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं अभी, पहले एक बार हम और थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पे वापस आएंगे। अब हम कह रहे हैं सम ऑफ दो नंबर्स इज 35। ओके, तो बेसिकली दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स क्या, एक्स और वाई, हमें तो कुछ आता ही नहीं है और कुछ, है ना। टेक नंबर, सो नंबर, टेक वन नंबर एज, टेक वन number equals to x, take another number equals to y, and hence we are what we are saying कि x plus y किसके बराबर, 35 के, खत्म, कुछ नहीं। और डिफरेंस क्या है दोनों का, तो 13 है। ठीक है भाई, x माइनस वाई 13 हो गया, राइट। अच्छा, y माइनस एक्स भी हो सकता था, राइट, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हमने ये तो लिया नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो y हो सकता है बड़ा हो, तो उसमें से ज्यादा कोई ज्यादा परेशानी है नहीं। नाउ अगर मैंने पहली इक्वेशन मान ली होती हो, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन तो देखो y की जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है और अपोजिट साइन में, तो सीधा ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 28, x कितना हो जाएगा 14, x 14 हुआ तो y कितना हो जाएगा, x 14 हुआ 14, नो इट्स नॉट 28, इट्स 48, 48, राइट। भाई ये गलती में जानबूझ के नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो ये कितना हुआ 24 हुआ, अब 24 में से ये गया तो 11 आ गया, राइट। तो एक्स 24, वाई 11, अगर ये लेंगे तो बेसिकली वाई 24 आ जाएगा और एक्स 11 आ जाएगा। बट बेसिक जो चीज चीज समझानी थी वो इक्वेशन बनाने से कहनी थी, विच इज वेरी ऑलरेडी वेरी इजी। मुझे लगता नहीं कि मतलब इससे ज्यादा आसान आसान सवाल तुम्हें मिलेंगे, लेकिन स्टिल ओके, लेट इट बी। आगे देखते हैं। ओके, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए क्या, बिल्कुल आ गए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 डिजिट्स को पहले एक बार समझते हैं। 2 डिजिट नंबर कैसे हो, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 27 लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर। अब 27 को किस तरह से देखा जाए, तो हमने कहा 27 को थोड़ा इस तरह से देखो कि 20, इसको 27 को मैं लिख सकता हूँ 20+7, हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने कहा 20 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, +7, हमें बहुत बढ़िया। अब बस इसी तरीके से जब भी तुम्हें कोई 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन दी होगी, वेन एवर यू आर बींग गिवन अ 2 डिजिट नंबर, always divide it like this first of all in your mind itself, okay, which already generally you have a formation of it, जनरली हमें पता होता है कि ऐसा तो होता है, राइट। नाउ जस्ट इन प्लेस ऑफ 2 and 7, 2 और 7 की जगह x और y ले लो। तो हम क्या कह रहे हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस y, ये हमारा एक 2 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर। So there is a 2 digit number. We are having a 2 digit number which is having 10x plus y, right? अब हमने क्या कहा, बस इसमें हमें क्या, हम what clarification we need to remember is that x is basically what, a tens digit number, and y is ones digit number for initially what we are considering ones digit number. That's it. Basic idea हमें ये होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि if 2 digit number the unit digit is twice the tens digit, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन है, यूनिट डिजिट हो गई, वंस डिजिट वाली को यूनिट डिजिट कहेंगे। तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो द यूनिट डिजिट y इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, वो दुगनी है किससे, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट कौन है, x, मतलब y जो है वो x से बड़ी है, 2 गुना से बड़ी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, x, राइट। सेकेंड,
इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, किस नंबर जो हमने प्रिज्यूम किया विच इज दिस, द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा कि y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y। दिस इज 27 है तो 27 को क्या लिख दो 72। तो बेसिकली हुआ क्या, तो इसको मैंने क्या लिखा 70+2, मतलब 7 × 10+2 मतलब 2 और 7 को बेसिकली इंटरचेंज कर दिया। तो हम दोबारा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि भैया 10x+y तो मैंने माना ही हुआ है, उसमें तुम 27 ऐड कर दो और वो 27 क्या करेगा, वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो। दैट्स इट, सिंपल, कोई हवाबाजी नहीं। क्या बात समझ में आई है? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। मतलब आपको लगेगा कि यार ये है ही क्या, मतलब इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल थोड़ी होता है। ओके चलो आगे देखते हैं। 10y देखो ध्यान से देखना, 10y उधर गया, x उधर गया, 10x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ, इट बिकम्स 9x। चलो ये भी 9y, अरे अरे ये तो 27 भी इधर ही आ गया, चलो उधर ले जाते हैं यार, कोई बात नहीं। क्या कर रहे, कह रहे हैं हम कि 10x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, तो व्हाट वुड हैपन 27, ये 9y हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, राइट है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं y माइनस एक्स, बस थोड़ा इसको लेफ्ट में लिख लिया, इसको राइट में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्या हो जाएगा 27/3, 9 सॉरी, विच इज इक्वल टू 3। तो हम क्या कह रहे हैं y माइनस एक्स किसके बराबर हो गया 3 के, लेकिन y तो 2x के बराबर था, तो 2x इज माइनस एक्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x, सॉरी y इज इक्वल टू 2x, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2x माइनस एक्स किसके बराबर आ गया 3 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 itself, x3 आ गया तो y कितना आ गया 6 itself। तो आंसर कितना हो गया x3, 2 डिजिट नंबर हमने क्या माना था x मल्टीप्लाई 10, तो 2 डिजिट कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10/6, 3 10 30 प्लस 6 विच इज 36। देखिए आंसर दे रहा हूँ। क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक बार फॉर्मेशन आ गई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, राइट। ओके लेट्स टेक दैट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। ये क्वेश्चन था ना, एक बार हम इसको ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा अलग पेज पे ले लेता हूँ, आई थिंक इस वाले पेज पे थोड़ा दिक्कत रहेगा। ये ले लिया हमने पेज, यहाँ पे हमारे पास ये रहा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस पेज को यहाँ ले जाते हैं, ये रहा, हम अपनी जगह ले आए, राइट। लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया, ये वाला 2 डिजिट वाला, सेम लॉजिक। चलिए बोलिए, खुद ही बोलो, मेरी स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लें, एक बार इस क्वेश्चन को अगर लिखा ना हो तो प्लीज लिख लें, ये देख लीजिए। अब बिल्कुल इसको ध्यान रख के अगला क्वेश्चन एज इट इज खुद करो, मेरी वीडियो पॉज कर दो और कर लो। कर लिया ट्राई, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ओके कर लिया ट्राई। नाउ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा। लेट्स टू 2 डिजिट नंबर, ये तो बिल्कुल मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर है उसको तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर सी, द सम ऑफ, अब इसमें क्या कह रहा है वो, ये तो 2 डिजिट नंबर मैंने मान लिया, अब वो क्या है, लेकिन क्या कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट कौन थे, जैसे पिछले मैंने क्या लिया था 27 लिया था, इस केस के लिए भी 9 ही आ गया ऑटोमेटिकली, लेकिन वो क्वेश्चन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसमें छोड़ो। क्या कह रहा हूं मैं कि 27 है, उसको बेसिकली ऐड करोगे 2 + 7 तो क्या आएगा 9, तो बेसिकली कुछ ऐसा ही कह रहा है वो, 6 और 3 भी हो सकता है, राइट। वो 5 और 4 भी हो सकते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट बेसिकली 9 आएगा उनकी सम्स को, उनकी टर्म्स को ऐड करके, उनके डिजिट्स को ऐड करके। तो पहली इक्वेशन सीधी सीधी क्या हो गई, x + y = 9। अब क्या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, जब मैं जो मैंने नंबर माना, ये वाला नंबर मैंने माना, इसका 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10x + y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। ये किसके बराबर है, ट्वाइस किसके, जो नंबर ऑब्टेन करेंगे कब, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगेन सेम लॉजिक, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट में क्या हो जाएगा 10y प्लस, तो कितना हो गया 90x + 9y किसके बराबर 20y + 2x। 20y को उधर ले जाओ तो 70, सॉरी कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, हाँ 2x को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 88x। 9y को उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 11y। y किसके बराबर हो जाएगा 8x, y को 8x की जगह रख दो, x + 8x इज इक्वल्स टू 9, 9x
इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1। 1 अगर है तो 1 की जगह x प्लस वाई की जगह x 1 आ गया तो इसको y की जगह रख दो, y इज इक्वल टू 8x है, x 1 है तो कितना हो गया भाई 8। तो हैंस हम क्या कह रहे हैं 1, 8 इज आर आंसर। खत्म। है टर्म्स, अगर हमें टर्म बतानी हो तो 10x प्लस वाई था, तो 10x प्लस वाई, x कितना 8 ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, x 1 है, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, 8 कितना y, कितना आ गया 18। दैट्स आंसर। वेरी सिंपल पार्ट। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझना है तुम्हें तो कैलकुलेशन साफ सही होनी चाहिए। मैं पहले लेक्चर से और लास्ट तक मैं यही बोलता रहूंगा, बेसिक क्लियर हो, इक्वेशन सही तरीके से बनानी आ जाए, मतलब अंग्रेजी को ढंग से इंटरप्रेट करना आ जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं है गणित में, 10th ग्रेड की तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओके, बढ़िया। अगेन सेम लॉजिक सी, सम ऑफ अ 2 digit नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। सम ऑफ 2 digit नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग, इसने दोनों एक ही इक्वेशन बना दी। पहले तो नंबर मान लो, सबसे पहली चीज तो नंबर मानने की है। नंबर क्या मान रहा हूं मैं 10x प्लस वाई। अब उसने कहा दोनों डिजिट को ऐड करो एक बार, सम ऑफ 2 digit नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब उसने ये दोनों में जो अभी तक हम अलग अलग कर रहे थे उसने एक साथ ही कर दिया क्या, कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। सीधा सीधा ऐड, कुछ करना ही नहीं है। ये देखो, अब क्या कह रहा है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा, जो यही वाला था भैया, तो 10x प्लस वाई में से मैंने क्या किया 10 नंबर घटा दिए। द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर होगा वो 4 मोर। जब भी मोर आएगा, मोर का मतलब होता है ज्यादा है। जो ये नंबर आया वो 4 ज्यादा है किससे, 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। ओके, 5 times द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगी, एक्स प्लस वाई, यही एक्स और वाई डिजिट है, उसका 5 गुना। टाइम्स का मतलब ये होगा, मोर मतलब बेसिकली ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है तो 4 ऐड किसमें करना पड़ेगा, इधर ध्यान से देखें, द न्यू नंबर इज 4 मोर। जो नया नंबर है वो 4 ज्यादा है, कब, 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि ये नंबर ज्यादा है तो 4 इधर ऐड कर दिया। क्या बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हैं अब हम, तो 10x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y प्लस 4। अच्छा, 10 को उधर ले जाएं क्या, तो ये 14 हो जाएगा, 5x को उधर ले जाएं क्या, ये 5x हो जाएगा, 5y को उधर ले जाएं क्या, ये -4y हो जाएगा, और किसके बराबर 10 के बराबर। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ऊपर वाली तुमने सिंप्लीफाई नहीं करी, ये तो सेकंड इक्वेशन थी ना, ये तो सेकंड इक्वेशन थी। ऊपर वाली इक्वेशन देखो, 10x 1x, तो 11x, 11y किसके बराबर 110 के, तो x प्लस वाई किसके बराबर 11 के, सॉरी 10 के। सिंपल लॉजिक। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हाँ फर्स्ट मान लो है ना, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब थर्ड और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है, तो हमने पहले इसके नीचे लिख दिया x प्लस वाई किसके बराबर 10 के बराबर। ध्यान से देखें, तो y के साइन अपोजिट है, तो y और 4 और 1 बेसिकली यहाँ पे हैं, तो 4 और 1 का एक तरीके से अगर मैं एलसीएम निकालना की कोशिश करूँ तो 4 ही आएगा। मतलब मैं डिनोमिनेटर वाले में जो टर्म है उसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, तो हेंस क्या आ जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40। ध्यान से देखें, ये 9x आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पे 54 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरीके से 6। जैसे ही x 6 आई तो x प्लस वाई किसके बराबर था 10 के, तो x 6 आते ही 6 प्लस वाई किसके बराबर हो गया 10 के, और y किसके बराबर हो गया 4। खत्म। ध्यान से देखें, बिल्कुल आराम से, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें। y इज इक्वल टू 4 आ गया है, दैट्स इट। ओके, तो हेंस जो टर्म आई मेरी वो क्या आई 10x प्लस वाई, तो इट विल बी 64। अरे 64 ये आंसर है। क्या बातें समझ में आ रही हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स में। इक्वेशन बनाना आ जाए, सॉल्व तो करना एलिमिनेशन और उससे हो ही जाएगा, राइट। किसी भी बुक में उठाओ, पहले प्रैक्टिस करो एलिमिनेशन मेथड की। जैसे ही एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया, कंफर्म्ड हो गया कि मैं लगातार 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस
बेसिकली सही कर पा रहा हूँ बाई कैलकुलेशन। उसके बाद चाहे तुम सिर्फ इक्वेशन बनाना देख लो, राइट, और हर तीसरी इक्वेशन जो बनाओ उसको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से देख लो, आंसर अगर सही आ रहा है तो फिर पहले दो करने की जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक है। उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे, ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस भी कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन को उतना करोगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगेन, अब फ्रैक्शन वाले मैं ऑलरेडी एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले चुका हूं, ध्यान से देखें। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, ध्यान से देखें, फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो सबसे पहले एक फ्रैक्शन अपने आप ही मान लें। क्या मानना है? फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई ले लें या वाई अपॉन एक्स? चलो वाई अपॉन एक्स ले लेते हैं इस बार, वाई अपॉन एक्स ले लिया। अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, वो 4/5 बन जाता है। पहले क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बन जाएगा 4/5 कब? वन वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हो दोनों में ही वन ऐड कर दो, ले। ये भी सवाल है क्या? क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, इन दोनों को साथ साथ ही बनाएंगे, ठीक है ना। एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन साथ साथ यहाँ लिख लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ले भैया दोनों में से 5 ही माइनस करना है, तो हमने 5 माइनस कर दिया। अब क्या हुआ? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ओ भैया, इतना डिफिकल्ट सवाल! भैया पसीने आ गए हमारे तो। अरे कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अरे भैया तुम भी सॉल्व कर लो, कुछ कोशिश क्या करो खुद भी सॉल्व करने की, मास्टर तो कर ही रहा है। 2y-10, x-5, 5y-4x इज इक्वल्स टू -1, 2y-x इज इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखें। अरे एक्स के वेरिएबल सेम सेम से लग रहे हैं क्या? यहाँ एक्स है, यहाँ 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको एज इट इज लिख लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखें। तो मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा अलग लिख के अच्छा लगता है। ये देखिए क्या किया अब हमने, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ओके 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 ओके, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये देखिए 5y-4x किसके बराबर? -1 के। 4 2 8y, ओ हो, 4x इज इक्वल्स टू 20। और माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि सेम साइन है भाई। माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ, देखो कट गए। माइनस करते ये कितना आ गया? प्लस माइनस, ये तो प्लस का होगा, ये -3y क्योंकि 8 बड़ा है। माइनस 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 कितना? 21। तो y किसके बराबर? 7 के। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही y 7 हुआ, राइट, जैसे ही y 7 हुआ इक्वेशन में डाल देते हैं। कौन सी इक्वेशन? ये ले लेते हैं। तो 2y, y कितना? 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 14 - 5 किसके बराबर? एक्स के। एक्स किसके बराबर? अरे रे 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 रे, 9 9 9 9 9। क्या बात समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शन हमारा क्या था? y/x, तो कितना हो जाएगा? 7/9। आंसर आंसर, अरे ये रहा 7/9 ही है, ये रहा बेचारा छुप के बैठा हुआ है यहाँ पे। गुड इनफ। क्या बातें समझ में आई हैं? होप एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? इफ ट्वाइस द सन्स एज, अरे ये एज के आगे दोबारा क्वेश्चन, कौन कौन? सन की एज है ना। इफ ट्वाइस द सन्स एज, तो सन को क्या मानो? एक्स। दूसरे कौन है? फादर। और तो कुछ नहीं है? नहीं, फादर सन ही है। फादर को क्या मान लेते हैं? वाई। क्या बात समझ में आ गई? एज ऑफ सन, सी, एज की स्पेलिंग नहीं आती मास्टर को, मास्टर को बहुत चीजें नहीं आती हैं। एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन इज एक्स, एज ऑफ फादर इज वाई। क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्वाइस द सन्स एज, एज सन की डबल हो जाए, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज। अच्छा, सन की एज ट्वाइस हो जाए तो क्या हो जाएगा? 2x। उसको ऐड कर दो किसमें? फादर की एज में। फादर की एज क्या है भाई? तो कह रहा है दोनों मिला के 70 हो जाएगा। ओहो, बढ़िया। लेकिन इफ ट्वाइस द फादर्स एज कर दिया जाए, मतलब 2y कर दिया जाए, और एडेड टू सन्स एज मतलब x कर दिया जाए, 95 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब सिंपल सी, x को भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जनरली मैं प्रेफर एलिमिनेशन ही करता हूँ हमेशा। ओके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम? तो ये 2 है और ये 1 है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सीधा सीधा नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हेंस इस इक्वेशन को तो एज इट इज लिख लेते हैं, और जो नीचे वाली इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 2x + 4y इज इक्वल्स टू 190।
अच्छा, आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते, मतलब जस्ट यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल सकते हो, दैट वी टू मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, या मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2, एंड देन डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस बेसिकली, ठीक है, उनको नंबर डाल देना, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, फिर यहाँ पे तो फर्स्ट ही है, इसको क्या करें, इसको थर्ड कर लेते हैं, एंड देन बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, राइट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, माइनस किया, माइनस से यहाँ पे कितना आ गया, आई थिंक 80 आ गया, राइट, यहाँ से ये निपट जाएगा, -3y, ओ माई गॉड, फिर गलत, हाउ कैन बी, एक आदमी इतना गलत कैसे हो सकता है एक क्लास में, 80 नहीं आएगा, -120 आना चाहिए, बहुत गलत आदमी है ये, 120/3 सारे आंसर गलत निकाल रहा है। ओके, y40 आ गया, तो पेरेंट जो फादर है उनकी एज 40 आ गई है, राइट, नाउ इफ यू प्लेस दैट 40 ओवर हेयर, तो 2x + 40 इज इक्वल्स टू 70, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, तो 2x इज इक्वल्स टू 130 ओनली, एंड x बिकम्स इक्वल्स टू 15। तो जो बेसिकली सन है वो 15 साल का है, और जो फादर है वो बेसिकली 40 है, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगेन अब यहाँ पे कोई आई दे रखा है, भैया मेरी उम्र 3 साल, मेरे बच्चा, भाई बहुत सारी चीजें हैं, चलो आई को हम क्या मान लें, एक्स, सन को क्या मान लें, वाई। अच्छा, आई मतलब फादर हो गया ना। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि यार 5 साल लेटर, 5 साल बाद, ओ बहुत बहुत साल, 5 years लेटर। ओके, पहली क्वेश्चन भी उसने यहाँ दे रखी है, सॉरी, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। ओके, तो आई जो है उसकी उम्र ज्यादा बड़ी है, तो 3 गुना है बेटे की उम्र से, तो 3 times में 3 बेटे में मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास पैसे 3 गुना पैसे हैं, हाँ, ठीक है ना, तो वो 3 गुना पैसे हैं, तो भाई 3 गुना, जिसके पास कम है उसके पास होंगे, अब मेरे पास 50 रुपए हैं, नहीं 45 फॉर एग्जाम्पल, और उसके पास 15 रुपए हैं, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास फिर से 3 गुना पैसे हैं, करना उसमें कुछ नहीं है। ओके, क्या क्या वापस आते हैं टॉपिक पे, 3x इज इक्वल टू 3y। अब हम कह रहे हैं 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या हुआ, 5 साल बाद जो हमारा x है, राइट है, आफ्टर 5 years लेटर ही लिख लेते हैं भाई, 5 years लेटर, तो 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 years लेटर वी आर बेसिकली सही, तो x हो गया x+5, और y हो गया y+5, राइट, ये फादर की एज हो गई, ये बेटे की एज हो गई। आई शेल बी 2.5 times एज ओल्ड माई सन, ओके, तो अब जो उसकी होगी एज, वो 2.5 गुना हो जाएगी अपने बेटे से, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय y+5, राइट, सो x+5 इज इक्वल्स टू 2.5y प्लस 5 5 25, 5 कैरी ऑन 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 12, 12 12.5 आई थिंक, राइट, या गुड इनफ। तो हम क्या कह रहे हैं, x माइनस 2.5y इज इक्वल्स टू 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.5, एक इक्वेशन आ गई। x किसके बराबर था, 3y के, 3y यहाँ पे डाल दें, तो 3y माइनस 2.5y इज इक्वल्स टू 7.5, यहाँ से बेसिकली 1/2 y आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 7.5, एंड हेंस y इज इक्वल्स टू 15 आ गया, राइट, y 15 आया, तो x कितना, अरे ये तो पहले वाला, ओ माय गॉड, ये तुक्का है भाई, ये तुक्का है, हमने कुछ आंसर नहीं पता था हमको, नहीं ठीक है, बड़े, ठीक है ना, फादर की एज हमारा 45 हो गई, और y की एज, बेटे की एज, चाइल्ड की एज या सन की एज जो भी है, वो 15। फैंटम लिखा हुआ है भैया, फादर तो कहीं से नहीं दिख रहा, फादर फैंटम है क्या, फैंटम कुछ, हाँ तो सही यार, ये नहीं पता मुझे क्या था, चलो कोई बात नहीं, फादर चाइल्ड, ओके, चलो 10 साल पहले, ओके, पहले आप भी का देख लेते हैं, तो फादर की एज एक्स है ना, फादर हमारे एक्स हैं, नहीं फादर से लड़ाई नहीं हुई है, फादर एक्स नहीं हो सकते, फादर फादर ही है, उसका एक्स अभी हमने, इनकी एज एक्स मानी है, ठीक है ना, एज ऑफ फादर एक्स, ओके, एज ऑफ फादर इज एक्स, एंड एज ऑफ सन, ओके, अगेन बेटे और सन से ही सब काम चल रहे हैं, ओके, व्हाट वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर वॉज 12 times, नहीं 10 years ago, आई एम सॉरी, तो 10 years ago एक्स डैश कितना हो जाएगा, x-10, वाई डैश कितना हो जाएगा, y-10, राइट, 10 years ago, राइट, फादर वॉज 12 times एज ओल्ड इज इज सन, तो फादर हमारे एक्स थे, तो x-10
इज इक्वल्स टू 12 इंटू वाई माइनस 10, राइट? गुड इनफ। ये हो गया एक पार्ट, उसको यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा, कलर चेंज करके लिखते हैं। क्या कह रहा है वो अगला? 10 ईयर्स हेंस। 10 ईयर्स हेंस बेसिकली जब वो अगो हो गया ना तीसरा, तो ये हेंस मतलब बाद में। बाद में मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10, और वाई डैश कितना हो जाएगा, वाई प्लस 10। दूसरा, अभी ये 12 गुना है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये टू टाइम्स, ट्वाइस एज ओल्ड हो गया। ऑब्वियसली एज बढ़ रही होगी तभी दोनों की इक्वल रहती है, राइट? इसको ऐसा मान लो कि जैसे किसी की एज है 2 साल, किसी की 24 है, राइट? तो 12, 24, 4, 34, 26 है let's say, हाँ। अभी क्या है, 13 टाइम्स हो गई। 10 साल बाद क्या होगा, ये 12 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो गई। तो सीधा सीधा समझ में आया कि ऐड ही होगा, राइट? तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो बेसिकली एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा वाई प्लस 20, 10। तो हेंस एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अरे रे, इतना सा आसान सवाल बार बार एक ही चीज कर करके मुझे तो लग रहा है कि हम क्यों ही करे जा रहे हैं। अच्छे बच्चे को लगेगा यार ये क्या ही एक ही सवाल कराया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी तो तुम हो ही 10वीं में, तो प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो x-12y इज इक्वल्स टू 10 उधर चला जाएगा, -110, राइट है? x-2y किसके बराबर, 10 के बराबर। तो इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है ध्यान से देखें तो सेम है, तो ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। तो हमने क्या किया, हमने लिए दोनों इक्वेशंस को, एक को माइनस, एक को प्लस और एक को फिर माइनस। तो ये 120 हो गया माइनस का, ये हमारा माइनस का 10y हो गया और ये कट गया। तो बेसिकली y की जो वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 12। y12 आया, y12 आते ही इक्वेशन में हम डाल देते हैं। कौन सी में डालें, किसी में भी डाल दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, यहीं पे डाल देते हैं। y12 आ गया, तो x-2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 10। x-24, 24 उधर चला जाएगा, 34। ओह माय गॉड, गॉट द आंसर 12 एंड 34। और यहाँ पे आई थिंक 12 एंड 24 ही है, बिल्कुल ठीक है। तो फादर की एज हमारी ये हो गई और ये हमारे सन की एज। पेंटम ही लिख लेते हैं इसको, है ना? ओके, आगे क्या कह रहे हैं अब हम? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब बस में वेरिएबल ज्यादा है तो थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हो सकती है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं अलग, ठीक है ना? ए एंड बी आर फ्रेंड्स, दे आर टू फ्रेंड्स, वेरी जिगरी फ्रेंड्स, चड्डी वड्डी टाइप। तो हमने कहा ए एंड बी आर फ्रेंड्स, तो ए हमारा फ्रेंड है जिसकी एज, क्योंकि एज की बात होगी यहाँ पे, तो हम ए और बी को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो ए एक्स हो गया और बी वाई। एंड देयर एज डिफरेंस, एंड देयर एजेस डिफरेंस बाय 2 ईयर। तो 2 साल दोनों के एज में डिफरेंस है, मतलब सीनियर जूनियर की दोस्ती चल रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कौन बड़ा, तो कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, दोनों में से अगर x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y-x भी 2 हो सकता है, ठीक है? दोनों 2 हो सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों लेके चल रहे हैं अभी हम। अब हम कह रहे हैं एज फादर डी। तो ए के जो फादर हैं दैट इज डी, विल टेक दिस। जो ए के फादर हैं, ए के फादर वो डी हैं, एंड डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ओके, तो डी जो हो गया, डी को डी मान लेते हैं, तो डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। सो डी किसके बराबर हो गया, 2x के। उसके बाद बी जो है, बी के बारे में कुछ लिखा था तो पहले एक बार मैं बी लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। बी जो है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर सी। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। बी बड़ा है अब इसमें, उसकी सिस्टर है सी, राइट? लेकिन बी बड़ा है तो सिस्टर, बेसिकली हम क्या लिखेंगे कि बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी, राइट? हमने बी और सी में रहने दिया उसको, जैसे बी की है ना, हाँ। लेकिन बी को तो हमने वाई माना था, तो इसको वाई मान लेते हैं। होप इट इज मेकिंग सेंस, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ सी एंड डी डिफर्स बाय 40। सी और डी की जो एज है वो डिफर्स बाय 40। अब ऑब्वियसली बात है, वो पिता है तो वो 2x माइनस एज ऑफ सिस्टर ही होगी। सो बेसिकली पहले डी इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज ही इज अ डैडी, सो डैडी माइनस द सिस्टर ऑफ बेसिकली सी is having a age difference of 40 years. Now what is d related to? It is related to 2x। बस ये यही है और कुछ नहीं। दूसरी इक्वेशन लाने के लिए उन्होंने दो और वेरिएबल ले लिए, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? d को क्या लिया, 2x ले लिया,
सिस्टर की एज क्या है, सी है, सी को वाई की फॉर्म में लिखूं तो वाई बाई टू लिख सकता हूँ। अरे ये तो वैसे थोड़ी सी अलग फॉर्म आ गई, कुछ नहीं, एलसीएम लो, सेम कर दो। एलसीएम ये वन हो गया, तो यहाँ पे टू टू जा फोर, फोर एक्स माइनस वाई, ये टू वहां चला जाएगा। या अभी पहले एक बार टू लिख लेते हैं यार, कहीं कुछ बच्चों को समझ ना आए। माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 80, खत्म, एक इक्वेशन बन गई। अब जो ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों को एक एक करके हम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं अब हम? पहला क्या है कि y माइनस एक्स किसके बराबर है, दो। और क्या है, माइनस वाई प्लस फोर एक्स इसके बराबर है 80। मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, माइनस वाई इधर रख लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले y लिख दिया था। हमने ध्यान से देखा तो दोनों इक्वेशंस, एक मिनट रुके, इसको मैं, ये केस फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो पहले मैं केस वन ले रहा हूँ, ये केस वन है, इसको केस वन मान के चलते हैं। मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मैं सेम सही मान रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, y से y कट गया, ऐड किया क्योंकि मैंने, ये 82 हो गया, इन दोनों का हुआ तो ये 3x हो गया, राइट है, सब्ट्रैक्ट होगा। गुड इनफ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 82/3 आ गई। 82/3 तो जाती नहीं है कहीं पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ये आया 29 के आसपास आ रही है। आंसर मैंने अभी इसका लिखा ही नहीं है आंसर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार दूसरे का और निकाल लेते हैं थोड़ा सा। जनरली ऐसे केसेस में पूरी पूरी एजेस ही आ रही हैं आज अभी तक, तो एक बार देख लेते हैं। x माइनस वाई क्या है, अगर दो है, और ये तो 4x माइनस वाई ही है जो 80 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो दिस विल बेसिकली बिकम 78, राइट। माइनस का ये तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये तो प्लस है ही, प्लस माइनस माइनस, तो -3x, तो माइनस से माइनस कट गया, x किसके बराबर आ गया, 78/3। ये कट जाएगा, आई थिंक साथ 15 होता है, राइट, हाँ। तो 2 जा 6 होता है 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। x 26 आ गया तो y कितना आ गया, 28। तो एक तो ये आंसर हो गया, y 28 है, 24 आया, y 24 आया, 24 आया है ना, 24 आएगा, क्योंकि x बड़ा लिया है, सीधा सीधा है ना। अच्छा, अगर x ये आया जिसमें x मैंने छोटा लिया था, तो y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 82/3 प्लस 2, विल बी 6, 88/3। ठीक है, अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, अब एक बार चेक कर लें, 82 को उसमें से माइनस करेंगे, वो तो यही आना है। पहली क्वेश्चन तो ठीक है, वैलिड ही है। दूसरी क्वेश्चन से एक बार चेक कर लेते हैं। 4 टाइम्स ऑफ x, तो 4 टाइम्स ऑफ 82/3 माइनस 88/3 इज शुड बी इक्वल्स टू 80 आना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 32 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 3। 28 इसमें से गया तो 300 रह गया, इसमें 60 रह गया, 60 से 240 आ गया, 240 से ये 3 आ गया, 3 से 80 आ गया। गुड इनफ, आई थिंक इट इज करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। अगर एक बार हम पहली इक्वेशन वैलिड ली तो उससे एक आंसर आएंगे, दूसरी ली तो दूसरे आंसर वैलिड आएंगे। ठीक है, तो 26 और 24 भी वैलिड है, और 82/3 और 88/3 भी वैलिड है। ये भी मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये 27.3 ईयर्स और 29.3 ईयर्स हो गए, है ना, ये कुछ ऐसा है। इसको 27/1/3 भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा है ना, ये वाली एज। अरे ये चीज समझ भी आ रही है भाई तुम लोगों को, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको मैंने क्या लिखा, 27 1/3, या फिर, और इसको लिखा 29 1/3। इसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे 88 है बाई 3 है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा नहीं है। 88 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 29 जब मैं करूंगा तो 87 आ जाता है, सीधा सीधा ये 29 से, और 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो कैसे लिखते हैं अब इसको, तो इसको लिख लेते हैं 29 प्लस 1/3, और इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 29 1/3 लिख लेते हैं ना। ये जिसको नहीं पता, ठीक है, जिसको पता है उसकी तो ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं। अब हो सकता है किसी को ना पता। ओके, चलो अब आ जाते हैं ये हाइट वाले क्वेश्चन। मुझे 2 मिनट और दीजिए प्लस के लिए ना, अभी आता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, थोड़ा डिस्टेंस से रिलेट हो गया। ओके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्टेंस फॉर्मूला आपने किया होगा क्लास 9th के अंदर, तो आपने एक्सेलरेशन भी कर लिया, आप तो 10th में आ गए हो, राइट। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ी सी आइडिया चाहे लगे।
तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बस इसी को ही यूज करना। ठीक है, ऊपर नीचे करके, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो व्हाट वी आर सेइंग, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड बेसिकली इट इज 90 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। दोनों के बीच में 90 किलोमीटर्स का गैप है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो एक गाड़ी हमारी यहाँ से, लेट्स से ये गाड़ी हो गई हमारी, ठीक है, ए से स्टार्ट होगी और दूसरी बी से। तो ये हम एक और गाड़ी ले लेते हैं, और कौन सा फ्रंट है कौन सा नहीं हमें भी नहीं पता, देखेंगे गाड़ी का क्या कह रहे हैं वो। दो बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। वो कह रहे हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, बढ़िया है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में गई, बी इधर गई और ए इधर गई, तो भाई ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी बी को पकड़ पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। वैसे तो पकड़ ही नहीं सकता नहीं तो हमने कहा भैया एक की वेलोसिटी ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, इसमें तो कोई ज्यादा डाउट है नहीं। अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे 9 घंटे में वो पकड़ लेता है, 9 आवर्स इट बेसिकली एबल्स टू कैच इट, राइट। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 9/7 आवर्स में ही उसे पकड़ लेता है। अब कैसे निकाले? तो हमने कहा देखो सीधा सीधा लॉजिक है, पहले मान लेते हैं अपोजिट सेम डायरेक्शन वाला, उसके बाद अपोजिट वाला देखते हैं ना। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पहले सेम डायरेक्शन वाला देखते हैं। अब मैंने कहा कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, तो हम क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कितने घंटे में पकड़ा गया, 9 घंटे में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, बी ने कितना किया होगा, तो बी ने किया भाई जो उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई में, इसमें क्या बात है सर, कैसी बातें कर रहे हो। अब ए ने ये किया, बी ने ये किया, अच्छा मुझे पता है कि बी ने कम ही किया होगा, ए ने उससे 90 किलोमीटर ज्यादा किया होगा, मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि डिस्टेंस ऑफ ए जो है वो ज्यादा होगा किससे, डिस्टेंस ऑफ बी से। तो बराबर करने के लिए क्या करें, तो हमने कहा भैया डिस्टेंस ऑफ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ बी करने के लिए मुझे एक 90 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, क्योंकि तभी वो बी को पकड़ पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना, 9 टाइम्स ऑफ बी। अरे सर इतना आसान सर, अरे इतना ही है भैया, बस बस हो गया खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ध्यान से देखें क्या किया हमने, यहाँ पे क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, 9 डिवाइड करेंगे 10 आ गया। क्या कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताएं, इसको तो छोड़ें, तो आंसर आएगा जो आएगा। पहला पार्ट हो गया। अब हम कह रहे हैं दोनों सेम ओपोजिट डायरेक्शन में चले। ओपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों चले तो हमने क्या कहा, हमने कहा देखो यार एक कितना चलेगा, डी ए, तो डी ए कितना चला, तो वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई, आई थिंक 9/7 था, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, 9/7 या 9/7। तो व्हाट वी आर सेइंग 9/7 हो गया ये। डिस्टेंस ऑफ बी कितना हुआ, डिस्टेंस ऑफ बी हमने कहा वी ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ बी, ये भी 9/7। अरे बताओ ए लिख दिया। हाँ सर को ABCD नहीं आती, ये पढ़ा लेगा क्या, हाइड आउट, बट हाइड आउट। ओके, क्या कह रहे हैं अब हम, तो ए और बी राइट, दोनों का डिस्टेंस। अब मुझे पता है कि भैया दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ही 90 किलोमीटर होगा, क्योंकि इनिशियली 90 किलोमीटर था। सिंपल सा लॉजिक है, तो कोई ज्यादा डाउट भी नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब वी ए 9/7 तो है ही, प्लस वी बी विच इज 9/डी बी, सॉरी वी बी 9 टाइम्स बाय 7। तो बेसिकली वी ए प्लस वी बी किसके बराबर हो गया, 70 के। वी ए माइनस वी बी किसके बराबर था, 10 के, तो वी ए माइनस वी बी 10 के। ध्यान से देखें अपोजिट साइन है, डायरेक्टली ही हो जाएगा। थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ बस मैं, सॉरी, अलग लिख दिया बस इन दोनों को मैंने। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, एक इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, बता सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, दोनों के साइन अपोजिट है, ध्यान से देखें, बी ए और बी बी में काट दिया, सॉरी माइनस साइन काट दिया, बहुत बढ़िया, अगल हो गया मास्टर। ओके, ट्वाइस ऑफ वी ए किसके बराबर हो गया, बेसिकली 80 के, हेंस वी ए किसके बराबर हो गया, 40। हेलो, वी ए किसके बराबर हो गया, 40 के। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वी ए 40 के बराबर, तो वी ए 40 तो अब इक्वेशन में डाल देते हैं, वी ए 40 तो वी बी कितना आ गया, तो वी ए प्लस वी बी किसके बराबर था, 70 के। वी ए कितना, 40, वी बी कितना डालना है भैया, कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर डाला हुआ, बाकी लॉजिकल कुछ में समझ में आएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ योर बी 40 बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली अब बेसिक फॉर्मूला जो है वो सेम है। क्योंकि आप लोग बच्चे
एक्सेलरेटेड बॉडीज भी कर चुके हो, राइट? तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। कंसेप्ट देखना, बेसिक बेसिक आइडिया लगाना, बहुत सिंपल है, ठीक है। आजकल तो ट्रैवल ब्लॉग्स भी बहुत चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हो। तो क्या कह रहा है वेद ने, एक सेकंड रुकना है। ओके, क्या कह रहा हूँ कि वेद ने 600 किलोमीटर चला। कहाँ से? घर से चला वो बेचारा, नानी नानू के यहाँ जा रहा होगा। पार्शली बाय ट्रेन, थोड़ी देर वो ट्रेन से चला। पार्शली बाय, थोड़ा वो ट्रेन से चला, थोड़ा वो कार से चला। उसको 8 घंटे लगे पहुंचने में, जब ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ओके, अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला और बाकी जो बचा हुआ वो कार से चला, तो उसे 8 घंटे लगे। और ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट बाय कार से चलता है। हमें उन दोनों की स्पीड बतानी है। Okay. अगर आप देखोगे तो मुझे ये समझ में आया कि वेद का जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर। पहली की स्पीड, बेसिक बेसिक आइडिया लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टोटल डिस्टेंस है राइट, पूरा लिखने की वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, भी आप लिख सकते हो। तो वेद, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेद इज बेसिकली 600, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेद इन ट्रेन, if 120 kilometers and distance traveled by way in car, हेलो, तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो माइनस करेंगे तो 480। अब मैंने कहा वेलोसिटी कितनी होगी ट्रेन की, तो उनका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वही तो निकालनी भी है, एक्स वेलोसिटी ऑफ कार, ये क्या हो जाएगा? अब हमने कहा यार एक एक्स है और दूसरा वाई, एक्स और वाई, राइट? अब हम कह रहे हैं यार कि जब ये केस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन जो बनेगी कि उसे टोटल लगे 8 घंटे, तो ट्रेन में कितना टाइम लगा? तो हमने कहा भैया ट्रेन का डिस्टेंस जो था वो 120 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला यही यूज करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और वो अभी डिस्प्लेसमेंट और वो उसमें ज्यादा मत पड़ो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टाइम बेसिकली किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब बेसिकली यही लॉजिक में लगा रहा हूँ, 120 बाई एक्स और दूसरा कितना हो गया 480 बाई वाई। अरे ऐसी फॉर्म तो हमने करी थी, 1/x को x मान के, 1/y को y मान के, बिल्कुल वही फॉर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। एग्जैक्टली सेम लॉजिक, सब कुछ सेम, बस अब हम क्या कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस था वो 120 की जगह क्या आ जाएगा? 20। इससे थोड़ा अलग कर लेते हैं ना, 120 की जगह क्या आ जाएगा? 200, और ये कितना आ जाएगा? 400। एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। तो अब उसे 20 मिनट ज्यादा लगे थे, राइट? 20 मिनट्स मोर। तो 20 मिनट्स मोर लगे मतलब 8 घंटे तो लगे ही, प्लस उसे 20 मिनट्स मोर लगे। 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें तो 20/60 हो गया। अब ये किसके बराबर? तो 200/x प्लस 400/y। इसको 1/3 कर लें तो बेसिकली 8, 1/3, 200/x, 400/y। 8 3 is 24, 24 और 1 25, 25/3 is equals to 200/x plus 400/y। 24 को इससे काट सकते हैं, 25 आई थिंक 8 जा ये होता है, 16 जा ये होता है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 24/x प्लस 48/y। एक ही क्वेश्चन होगा। दूसरी 8 और 180 है ही, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 से कर लें, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 से करेंगे 15 आएगा, 15 से 60 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल्स टू 15/x प्लस 60/y। ये की क्वेश्चन नंबर। अब हमने क्या कहा, एक्स और वाई में इक्वेशन आ गई दो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक लेवल पे में दिख जाए। अब हमने क्या कहा, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई,
दूसरी क्वेश्चन यहाँ राइट है। अब हम एक सेकंड राइट, हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि मैंने इन क्वेश्चंस को अलग से लिख लिया। क्या किया मैंने, 1/15/x लिखा, 60/y लिख लिया। दूसरी क्वेश्चन है 1 = 24/x प्लस 48/y। हमने दो इक्वेशन लिखी राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमने कैसे सॉल्व किया था कि इनको पहले ऐसे लिखने के लिए, तो 1/x को स्मॉल x को कैपिटल X लिख लेते हैं, 1/स्मॉल y को कैपिटल Y लिख लेते हैं राइट है। तो हेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 = 15 कैपिटल X प्लस 60 कैपिटल Y, और 1 = 24 कैपिटल X प्लस 48 कैपिटल Y। अब वापस से या तो x को एलिमिनेट कर लो या y को, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, किसी को भी ले सकते हैं। x को ले लेते हैं, x पे लेकिन हमारे पास क्या है, 15 और 24, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 5 जा और 3 8 जा, 8 और 5 में कुछ है नहीं तो सीधा 5 और 8 लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा 8 5 जा 40, 120 आ गया सीधा सीधा पूरा। तो 120 आया, तो 120 लाने के लिए 15 में किससे मल्टीप्लाई करें, आई थिंक इन 15 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 8 जा होता है और वो 25 5 जा होता है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बन गया, वो 8x हो गया, 120x हो गया, 480 y हो गया, 5 से करेंगे सॉरी 8 8 होगा, ये 5 हो गया, 5 से ये 120x हो गया प्लस 240y हो गया राइट है। माइनस से चला गया, ये माइनस ये आया, ये 3 हो गया, ये हमारा कितना आया, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट तो करना है ना, 240y आ गया, तो बेसिकली y 80 आ गया। ठीक, 3/240 = y विच इज 80। तो y किसके बराबर आ गया, 1/80 के, लेकिन y तो 1/स्मॉल y के बराबर था, तो इसका मतलब y जो होगा स्मॉल y 80 का जाएगा किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब पहले y 1/80 इक्वेशन में डाल लेते हैं एक बार। तो 1 = 15x प्लस 60 इंटू 1/80 ना, राइट है ना, y 1/80 राइट, जीरो से जीरो कट गया, 2 3 जा 2 4 जा 3/4 वहां जाएगा तो 1/4, 1/4 = 15x, तो x किसके बराबर आ गया, 1/60 के, एंड हेंस x = 1/स्मॉल x, 1/स्मॉल x 60, तो बेसिकली x किसके बराबर आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 और 80 दो वैल्यूज आ गई, बढ़िया, गुड इनफ, ट्रेन 60 कार 80 राइट है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन ठीक है, मतलब अगर आइडिया लगे, वैसे यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी क्वेश्चन को अगर हम सीधा सीधा बनाने की कोशिश करें तो भी हो जाएगा, बट ठीक है, आपको जैसा समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन बनाना और बेसिकली उससे सॉल्व करना। होप एवरीथिंग मेक सेंस, ये पूरा एक सवाल ही होगा, है ना। ओके, शैल वी मूव ऑन देन, गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितने रह रहे हैं अभी इसमें, ओके हम पेज नंबर 18 तक पहुंच गए हैं, गुड इनफ, 4 हो जा रहे हैं। ओके, एक्चुअली लेक्चर बड़ा हो गया तो शायद मैं इसको दो पार्ट्स में डाल दूं, ताकि थोड़ा सा छोटा छोटा दिखे तुम्हें, तो आराम से कर भी पाओ। ये क्या कह रहे हैं, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो एक अपस्ट्रीम है और दूसरा डाउनस्ट्रीम। अगेन सेम लॉजिक है, थोड़ा सा अब इसमें, और बेसिकली फॉर्मूला वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट ओवर हियर इज, आई थिंक आई ब्रेक इट। ओके, ये अगले पार्ट में करते हैं, 4 सवाल ही हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद इसमें टाइम लग जाएगा और आधे घंटे का, तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक राइट नाउ।